all three services are the best. Can we agree on that? Yes. Because they have their own unique challenges. I'll explain. See, आर्मी में सबसे बड़ा खतरा है दुश्मन की गोली. एयरफोर्स में सबसे बड़ा खतरा है एयर क्रैश. नेवी में सबसे बड़ा खतरा है जिद्दी दाग. Good evening, ladies and gentlemen. Are you guys having a nice time? Yes. If you're not, who cares? I care. आप तो कुछ ज़्यादा ही nice time, sir. What's your name? Vedant. Nice. How old are you, Vedant? 26. 26? That's a nice age to be. My name is Manik Mehta, and a bit about myself. I am a veteran. I have proudly served and retired from the Indian Navy. Oh, thank you. Always admire an intelligent audience. So I was with the Indian Navy for about 26 years. Just to give you perspective, when I was in uniform, Vedant was in liquid form. Those who are laughing the loudest were in diapers. So I'm going to share some bits of my Fauji life. Are you guys up for it? Yes. Not convincing at all. Let me ask in Fauji style. Good evening, Mumbai. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Nice. पीछे से आवाज आई. I am high, sir. जोश का पता नहीं, sir. So I've been doing comedy for 8 years now, but it was quite tough in the beginning. I'll tell you why. Like I looked okay. Like I don't even look my age. This salt and pepper is not helping at all. I've got a very decent childhood. As in, my dad never beat me up. Never. I have been the recipient of only one slap from my dad in my entire life. Are you getting it, sir? How bad it is for comedy. How bad. Like in school, I was the class topper. Okay, ज़्यादा हो गया. This video is going to reach my classmates at some point of time. ये ज़्यादा हो गया. Okay, I am decently fit. Like when I walk, my thighs don't rub against each other. Are you getting it? How difficult it is to do comedy. I can't do self-deprecating jokes, man. Zero. That's how all comics start, right? मैं मोटा सा छोटा सा लोटा लेके खराब नसीब मैं हूँ गरीब. Okay, no names, but you get the drift, right? On top of that, I had the best job in the world. I'll tell you what it is, you decide. Okay? Wait for it. Ladies and gentlemen, I was a fighter pilot in the Indian Navy. Nice. Badass is what I want to hear. This is the last plane I flew in the Navy. It's called the Hawk Mark 132 from INS 551, the squadron which is known as Phantoms. And, some people are still confused. Huh, ma'am? Thoda sa confusion hai. Fighter pilot, Indian Navy. Last show, one lady asked me, Manik, did you mean Air Force? Did you mean Air Force? I think you meant Air Force. I was like, thank you, ma'am. 4 साल की ट्रेनिंग 22 साल की नौकरी गलत वर्दी में निकाल दी. रॉन्ग यूनिफॉर्म. रुस्तम के अक्षय कुमार से सीधा मौसम का शाहिद कपूर. चलो अभी एटलीस्ट फाइटर तो है ऋतिक रोशन. रॉन्ग यूनिफॉर्म की वजह से तो ज्वाइन किया था. यू गाइस एग्री? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, विच इज द बेस्ट यूनिफॉर्म? Navy. विच वन? Navy. Come on, speak up! White dashing, yes. Okay, which is the best service? Very controversial. More controversial than any other religion, politics. See, if somebody asks me, कि भाई which is the best service, I always say army. हो सकती थी. Uniform में मात खा गए. है कि नहीं? I respect all three services. Great respect for all three services. Because I've seen all three services up close. Like I'm an army brat, trained by the Air Force to fly for the Navy. Okay. So all three services are the best. Can we agree on that? Yes. Because they have their own unique challenges. I'll explain. See, army में सबसे बड़ा खतरा है दुश्मन की गोली.
एयरफोर्स में सबसे बड़ा खतरा है एयर क्रैश, नेवी में सबसे बड़ा खतरा है जिद्दी दाग। द बेस्ट यूनिफॉर्म कम्स विद द प्राइस मैन। जब टोपी से लेकर शूज तक यूनिफॉर्म वाइट हो तो आधी जिंदगी और कमाई धोने धुलाने में निकल जाती है। आई एम टेलिंग यू, मतलब यू आस्क एनी मैरिड नेवी मैन, तो घर जाता है ना तो बीवी पहले चाय पानी नहीं पूछती, पहले देखती है कहाँ कहाँ लगा के आया है जिद्दी दाग। फिर आप टीवी ऑन करते हो और उस पर आप देखते हो एक जिज्ञासु बच्चा टिकली जो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है कीचड़ के साथ। मम्मी डांटेगी, अभी मम्मी डांटेगी। फिर वो घर जाता है और उसकी हॉट सेक्सी मॉम बोलती बेटा दाग अच्छे। देन शी डज दैट टिंडर बम्बल थिंग ऑन द शर्ट, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, वाओ वाइट अगेन, दाग अच्छे है। But uniform is not the only thing. You know, I also joined the Navy because my dad was in the army. और मैंने आर्मी देखी। You know, मतलब true story. My dad actually wanted to join the Navy, but you know he was in National Defence Academy, not yet allotted for 4 terms, and then his battalion commander called him for an interview, and he asked him to draw a ship. So he drew a ship. Based on his drawing, he got army. दर्द देख रहे हो आप, मतलब उन्होंने बड़ी शिद्दत से एक ड्राइंग बनाई। फिर वो बटालियन कमांडर ने बड़ी गौर से वो ड्राइंग देखी और फिर बड़ी खुंदक से उनको देखा। बोला बेटा ये पेन नीचे रखो, वो कोने में राइफल पड़ी है, पहले ट्रक में सीधा बॉर्डर, तुम शहीद होने लायक हो राइट नाउ। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ किड when I was small, you know, because my dad, ये झूठ नहीं है, कहीं कहीं सच है एक्चुअली, वो एक्चुअली सीधा बॉर्डर सच निकला because he was a para commando and he was an infantryman, so most of his service life was in the forward areas in Kashmir, which is called the field area, and as kids we used to, you are only allowed there, you know, for a very limited time during vacation. मतलब ऐसी ऐसी जगह बेस बनाए हैं आर्मी ने कि मेरे तो बेबी सोल से आवाज निकल के आती थी कि पैंचो पैंचो, ये कहाँ आ गए हम। गूगल मैप्स में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस नहीं है क्योंकि रोड ही नहीं है। रोड छोड़ो, मतलब विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड कुछ नहीं है। चिट्ठी भी लिखो तो कर्नल शशि कुमार मेहता, केयर ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, फुल स्टॉप, दी एंड, थैंक यू वेरी मच, पहुंच जाएगी। ऐसे खुफिया मैकेनिज्म थे उसके। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ईमेल जनरेशन वाले, तो चिट्ठी क्या होता है। हाँ वेदांत, तुम्हारी शक्ल पे मतलब लिखा है फीमेल से ज़्यादा ईमेल इंटरेक्शन है तुम्हारा। चिट्ठी होता है, मतलब तब ईमेल नहीं होता था और व्हाट्सएप भी नहीं था भसड़ मचाने के लिए। एंड मतलब जाने के लिए भी ना रोडवेज ना रेलवेज, एक आर्मी के कॉन्वॉय में जाना पड़ता था। मतलब पूरे कॉन्वॉय में, मतलब 4 ट्रक आगे 100 जवान, 4 ट्रक पीछे 100 जवान, बीच में एक बस में सारे फैमिली वाले, बस आंखों में पट्टी नहीं बांधी, नहीं तो फुल किडनैपिंग का फील था, बॉलीवुड टाइप। समर वेकेशंस, माय फ्रेंड्स, माय क्लासमेट्स वर हैविंग फन प्लेइंग वीडियो गेम्स। हमारा अलग चल रहा था यहाँ पे, स्क्विड गेम्स। मैंने अपने बड़े भाई से इतनी बार पूछा, यार पापा से मिलना इतना जरूरी है क्या, जान भी खेल के। मतलब एट दैट टाइम कश्मीर इन द मिड 80s, इट वाज अ बॉइलिंग पॉट मैन। There was terrorism, there was heightened state of alertness, इतना टेंशन, और उस टेंशन में भी ये जो सारी मम्मियाँ जो है हमारी, वो गाड़ी बीच शहर में रोक के जाती थी खरीदने सस्ते चेरी और प्लम। मैं बता रहा हूँ, मदर्स डोंट नीड विमेन एम्पावरमेंट, ऑल दे नीड इज टू नो वेयर यू गेटिंग द बेस्ट डील। यू कैन हैव यूज्ड दिस स्ट्रैटेजी टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया। इनको जस्ट बोल दो पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गाजर सस्ते मिल रहे हैं, ये दे विल लूज कंट्रोल, क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, पहुंच जाएंगे वहां पे। भैया टी लगाना, टी लगाना भैया, नहीं तो आर्मी ले आएंगे यहाँ पे। सो हमारी मम्मियाँ खरीद रही होती थी सस्ते चेरी और प्लम, और मैं वहाँ छोटा सा बैठा हूँ सोच रहा हूँ कि इस प्लम में अगर निकला बम तो हम तो सस्ते में ही निकल जाएंगे। एंड यू नो, लाइक इन लाइफ देयर आर 3 things, this luxury, this comfort, this necessity. Like डेटा वाईफाई नहीं आता, लग्जरी छोड़ दो। एयर कंडीशनिंग नहीं आता, कंफर्ट है छोड़ दो। बिजली पानी ही नहीं आता, और आर्मी के बेसिस मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ों पे इतने ऊंचे बनाए हैं, सांस ही नहीं आता।
ऑक्सीजन ही नहीं है। 10 दिन की छुट्टियों में मतलब 5 दिन एक्लिमेटाइजेशन, 5 दिन डिक्लिमेटाइजेशन। मतलब बॉडी की बायोलॉजी का फिजिक्स केमिस्ट्री करती है तो। एंड एवरीबडी टॉक्स अबाउट फौज में कैंटीन में दारू डिस्काउंट पे मिलती है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पैकेज में गोडों का दर्द और आर्थराइटिस मिलता है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सोशल मैसेज। So another reason why I joined the Navy was the UPSC form which said Navy training in Naval Academy, Goa. 90s की बात बता रहा हूँ मैं। फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं था ये। लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। हमने सिर्फ बॉलीवुड में देखा था कि गोवा है जन्नत। तो मैंने कहा अगर देश की सेवा सन सैंड बीचेस और रशियंस के साथ हो सकती है तो साइन मी अप फॉर दिस राइट नाउ। गोवा एक्सप्रेस जब हम जाते थे, गोवा एक्सप्रेस, एज सून एज यू क्रॉस द बॉर्डर, फर्स्ट स्टेशन कासल रॉक, दूध सागर फॉल्स। सुबह सुबह दूध चाय मिले ना मिले, सर आपको वहां पे बेयर 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 बोरियों में लेके आते थे लड़के। बेयर बेयर मतलब मैं और मेरा दोस्त इतने हम तो पागल हो गए, हमने जीन्स काट के निकर बना ली। हमने कहा वी हैव अराइव्ड। बावलापन देख रहे हो आप, हम पीते भी नहीं थे, मिल रही है ऐसे ही। बट यस, ऑन अ मोर सीरियस नोट, me and my entire generation joined the Navy because of just one phenomena, and it was called, and it's still called, Top Gun. Mr. Maverick, naval aviator. बट क्या है कि हम 16-17 साल के थे, हमें नहीं पता पिक्चर है, 2.5 घंटे की पिक्चर है, बहुत एडिटिंग होती है, शिप की ट्रेनिंग तो दिखाई नहीं उसमें। These Navy warships are not like cruise liners. ये जैसे ही as soon as they leave the shore, ये कुछ अजीब सा कुछ करते हैं, like combination of rolling, pitching, yawing, ये सब मिलके बन जाता है वो जैसे बारात में भूपा जी का नागिन डांस। और ये चलता है तकरीबन हमेशा, मतलब 15 दिन की सेलिंग में 360 घंटे आप बस झूम ही रहे हो बस पूरे। एवरी डे इज लेग डे। यू हैव टू गेट योर सी लेग्स इन ट्रेनिंग। यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस योरसेल्फ विदाउट होल्डिंग एनीथिंग। तो आप बस यही करते हो। और पेट में जो खाने का जो खाना है उसकी अलग चलती है रेव पार्टी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर बीट और ड्रॉप के साथ सीधा बाहर। That's why the best form of dieting is serving on a naval warship. And मतलब सब कुछ बांधना पड़ता है, सब कुछ बांधना पड़ता है। It's called securing for sea. फिर भी चीजें गिरती हैं। रात को आप सो रहे हो, आवाज आएगी एकदम से, ओ टीवी गिर गया। फिर थोड़ी देर में फिर से आवाज आएगी, ओ फ्रिज भी गिर गया। ओ फिर से आवाज आएगी, ओ वेदांत भी गिर गया। फिर आ गया तो कि भाई ये टीवी फ्रिज सुबह देखेंगे, अभी वेदांत को उठाओ यार और इसको ही बांधो यार। कैन वी हैव अराउंड वेदांत प्लीज यार, ये बेचारा टारगेट हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो हमारी डिश है खिचड़ी, इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था? एक नेवी वॉरशिप के गैली में जहाँ शेफ साहब बना रहे थे दाल और चावल, फिर एक बड़ी वेव आई और बन गई खिचड़ी। यू कैन क्लैप सर प्लीज। देयर आर सम पीपल हु आर दे आर फीलिंग बैड। वेटरन है, ही फील बैड, इस पे हंस रहे हैं। नहीं, हंसना ही है सर। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस शो। सो एनीवे, उल्टी करते कराते हम गए फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए फाइनली विद द एयरफोर्स। एंड माई मॉम जस्ट गेव मी वन एडवाइस व्हेन आई वाज गोइंग फॉर फ्लाइंग। शी सेड, एंड आई कोट, बेटा धीरे चलाना, ज़्यादा ऊपर मत जाना। देखो, माँ की ममता, डजंट नो फिजिक्स मैथ्स एंड लॉजिक, तभी माँ की ममता होती है, पापा का पपीता या पपता नहीं। So with that one advice, मेरी मदर ने एरोडायनेमिक्स की मदर सिस्टर एक कर दी। At that time, I was flying the fighter plane with the fastest
लैंडिंग स्पीड्स इन द वर्ल्ड, द मिग 21. मैंने कहा माँ धीरे चलाऊंगा तो बहुत ऊपर जाऊंगा. Are you guys having a nice time? See, I am a pilot by profession and a comedian by passion. This is my passion. आपको जोक सुनाना, आपको हंसाना. तो अगर आप नहीं हंसोगे तो मेरे दिल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Because I am a pilot. नहीं, फर्क तो पड़ता है, but yes. So, fighter pilots in the Navy क्या करते हैं? A lot of people ask me, why do you need fighter planes in the Navy? क्या करते हो आप? मैंने कहा हम जहाज से हवाई जहाज उड़ाते हैं. क्यों? हम मजा बड़ा आता है. आप बंजी जंपिंग क्यों करते हैं? But it's basically for the air defense of the fleet, and flying as such, and combat flying over sea is very different from flying over land. क्योंकि when you're flying over land, नीचे ज़मीन दिखती है, थोड़ा ओरिएंटेशन मिल जाता है कि how are you placed, उल्टा हो सीधा हो. But when you're flying over sea, नीचे ब्लू है पानी पानी और ऊपर ब्लू है स्काई स्काई. तो थोड़ा सा ना डिसोरिएंटेशन हो जाता है. तो दैट्स वेरी ट्रिकी. इसलिए द बॉलीवुड सॉन्ग्स विच पीपल फाइंड रोमांटिक, नेवी पायलट्स फाइंड हॉरिफिक. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. किस तरफ है आसमां, किस तरफ जमीन, खबर नहीं, होश गुम हो जाते हैं. Then another thing, people say fighter pilots think they are the best. सुना है क्या आपने? फौज में भी बोलते हैं फाइटर पायलट्स थिंक दे आर द बेस्ट. ऐसा कुछ नहीं है. आई विल क्लैरिफाई. दे आर द बेस्ट. इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट. थैंक यू. It's a job requirement. Like, to become a good comedian, you have to do engineering, MBA, and a corporate job. Fighter flying is a game in which if you personally don't believe that you are the best in the game, then you are in the wrong game. देखो अभी आप combat में हो, आप with another adversary, दुश्मन के साथ. अभी यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि I'll share your reel, you share mine. Let's collab. We will collab. There's no collab. दोनों में से एक का इंस्टा अकाउंट बंद होने वाला है परमानेंटली. #RIP. और एयर क्रैश में रेस्ट इन पीस नहीं होता. इट्स रेस्ट इन पीसेस. That's my time, ladies and gentlemen. My name is Manik Mehta. I go by the name Maniac Mehta on Instagram. रक्षा करेंगे सागर तट की, ताकत बढ़ाएंगे भारत की. याद करो उन वीरों की, शान है जो नौसेना की.